لولا لنگڑا ایک سیکریٹریٹ جہاں نہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے تھے بلکہ عوام پر ایک مزید بوجھ پڑ گیا، یہ سیکریٹریٹ بنا رہا۔ اس کے بعد ستمبر 20 میں اور دسمبر 20 میں 2 بڑے لمبے چوڑے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ اختیارات دیے جا رہے ہیں جو افسران جنوبی پنجاب میں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی اختیارات نہ دیے گئے، اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا جس طرح پہلے تھا۔ پھر 29 مارچ کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں جو سپٹمبر کا نوٹیفیکیشن تھا 20 کا، اس کو وڈرا کر لیا گیا، اور ساتھ ہی ایک اور لمبا چوڑا نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ صوبہ پنجاب میں جو افسران ہیں یا جو سیکریٹریٹ ہے اس کے پاس اختیارات کیا ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں، اور اس نوٹیفیکیشن میں بہت سے وہ اختیارات جو دیے گئے تھے ستمبر اور دسمبر 20 میں وہ بھی وڈرا کر لیے گئے، یعنی اس صوبے کو ایفیکٹولی، اس سیکریٹریٹ کو، جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کو ایفیکٹولی ختم کر دیا گیا۔ یہ 29 مارچ کو وڈرال ہوا پرانے نوٹیفیکیشنز کا 2020 کے جو تھے، اور 30 کو نیا نوٹیفیکیشن 30 مارچ کو جاری ہوا جس میں نئے اختیارات دیے گئے جو افسران وہاں پر رہ گئے تھے۔ اب ایک دن اور گزرا، 1 تاریخ کو جو 29 کو جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا وڈرال آف پاورز والا، اس کو وائڈ ایب انیشو کر دیا گورنر صاحب نے۔ وائڈ ایب انیشو یعنی کہ جو 2 دن پہلے ہم نے جاری کیا تھا نوٹیفیکیشن وہ قانون میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور ساتھ ہی ایک اور نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس نے مارچ 30 کو جو جاری شدہ نوٹیفیکیشن تھا جنوبی پنجاب کے افسران کے جو اختیارات کم کیے گئے تھے اس کو بھی وڈرا کر لیا۔ تو یہ 3 دن کی سرکس 29 تاریخ، 30 تاریخ اور 1 تاریخ جو جنوبی پنجاب سے کھیلی گئی ہے، یہ اس حکومت کی کامیابی ہے۔ اس میں وفاقی وزراء نے بھی، صوبائی وزراء نے بھی بیان بھی دیے کہ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومتیں اس طرح نہیں چلا کرتی، حکومت ڈیلی ویجز کے لوگ نہیں چلا سکتے، حکومت روز اپنی پالیسی بدلتی نہیں ہے۔ وفاق میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہر روز پالیسی بدل جاتی ہے، ہر آدمی پریشان ہے، پورا ملک کی معیشت ڈوب گئی ہے۔ اسی کا ایک نمونہ آپ نے جنوبی پنجاب میں دیکھا ہے کہ یہ لوگ نہ اس صوبے سے ہیں، نہ کہ وہاں کے عوام سے جن سے کہا ہے ملنے آئیں۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ یہ طرح طرح کے تماشے جو بزدار صاحب نے لگائے ہوئے ہیں، یہ اب وہ کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ حکومت جو کام کرتی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرتی ہے۔ آپ 30 صفحے کے نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اور ایک دن بعد ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں ان کی یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وائڈ ایب انیشو ہو گئے۔ تو انشاءاللہ عوام اس حکومت کو وائڈ ایب انیشو کر دیں گے۔ یہ بزدار کی حکومت جو ہے، جو عمران خان صاحب چلاتے ہیں، ہفتے اور اتوار والے دن لاہور جا کے، اس کے یہ حالات ہیں۔ ملک کے حالات آپ دیکھ لیں، وفاقی حکومت کے حالات دیکھ لیں، پنجاب میں آپ دیکھ لیں، اور جو ان کی ہمدردی جنوبی پنجاب کے لوگوں سے ہے،
जो इनकी नीयत है जनूबी पंजाब के बारे में, आज वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई है कि सिर्फ झूठ बोलने पर, अवाम को धोखा देने पर, अवाम की मुश्किल में इजाफा करने पर और तरह तरह के ढोंग रचाने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। हम आज भी कहते हैं कि अगर आप मुखलिस हैं जनूबी पंजाब से तो कौमी असम्बली में बिल ले आएँ, पंजाब असम्बली में बिल ले आएँ। ये रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली का मौजूद है कि जनूबी पंजाब और भावलपुर ये दो सूबे बनने हैं। इसके लिए आइनी तरमीम चाहिए, ये बिल ले आएँ। इस तरह के तमाशे करने से न मुल्क चल सकता है, न जनूबी पंजाब के अवाम के मामलात हल हो सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जितना काम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में किया, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। एक एक रुपया गिन लें। अगर ये बुज़दार साहब की हुकूमत अपने 3 साल में उसका 10वां हिस्सा भी कर सकी है तो फिर हम कहेंगे बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि ये तमाशे जो हैं मुल्क में, तमाशों में मुल्क नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूँ ये सर्कस नहीं है। ये 23 करोड़ का मुल्क है, ये 13 करोड़ का सूबा है, उसके साथ आज ये मामलात इस हुकूमत के हैं। तो हम इस काम की मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। उनकी जो ज़रूरत है, जो उनकी राय है सूबे के बारे में, और सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं, हज़ारा में भी सूबे की डिमांड है। पाकिस्तान में जहाँ भी सूबे की डिमांड है, ये मामलात कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में डिबेट होकर ये मामलात हल होते हैं। हमने इसकी मिसाल आपको दी है कि फाटा का मामला था, हुकूमत के जाने में 6 हफ्ते बाकी थे, लेकिन हमने तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत करके वो काम भी आपको करके दिखाया। तो आज क्या मुश्किल है कि 3 साल गुजरने के बाद भी न जनूबी पंजाब का सूबा बन सका है, न भावलपुर का सूबा बन सका है, न हज़ारे की बात हो सकी है, न किसी और जगह जहाँ पर अवाम की डिमांड है। सूबे मुल्कों में बनते रहते हैं। इस बात पर डिबेट करने के हो सकता है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी बात में हो कि हमें जहाँ भी अवाम की डिमांड है मुकामी तौर पर उनके मसाइल हल करने के लिए सूबे बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये मामलात उस वक़्त होते हैं, इनका हल उस वक़्त निकलता है जब एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो, चोरी शुदा इलेक्शन से ना आई हो, जिसको अवाम के दुख और दर्द का पता हो, जो अवाम की तकलीफ़ जानती हो। जो मुसल्लत की हुई हुकूमतें होती हैं वो मुल्क को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। जी भाई साहब ये बताएंगे, आज अवाम के अंदर जो बड़ा अवाम है पाकिस्तान का, जिसमें चारों सूबों की नुमाइंदगी भी है, वहाँ पे अपोजिशन एक वाज़ेह तकसीम नज़र आई है। तो मुस्तक़बिल में क्या, आज नोटिफिकेशन भी आपने उनको इशू का नोटिस भी दे दिया, तो उस का जवाब कब तक इंतज़ार करेंगे और मुस्तक़बिल में पीपल्स पार्टी से कोई राय एक हो सकती है? अपोजिशन में तकसीम नहीं है। अपोजिशन के उन मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस से आए हैं। उनको वापस हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए। ये दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं है कि हुकूमती बेंचेस से अरकान उठ के अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हों और अपोजिशन लीडर उनकी मर्ज़ी से बना हो। तो ये जो फ्रेंडली अपोजिशन है वो हमें नहीं चाहिए। हकीकी अपोजिशन चाहिए और वो इंशाल्लाह आपको सेनेट में मिलेगी। मौलाना फजल रहमान बीमार हैं तो उनकी एब्सेंस में जो सीनियर नायब सदर हैं पीडीएम के, वो इजलास बुलाकर फैसले कर सकते हैं? नहीं, कोई ऐसा फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि कोई इजलास जो है वो फजल रहमान साहब की मर्ज़ी के बगैर नहीं हो सकता। तो ये शबखून मारने की जो कोशिशें हैं ये कभी कामयाब नहीं होगी। ये लोगों की ख्वाहिशात बहुत सारी हैं, लेकिन सियासत जो होती है वो एतमाद पे होती है। इत्तेहाद एतमाद पे चलते हैं। उस एतमाद को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर जवाबदेह आपको होना पड़ेगा। सात नशिस्तें हैं, कितना छोटा है? पीपल्स पार्टी की पंजाब में नशिस्तें नहीं है, ना अदम एतमाद वो ला सकती है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बार बार ये कह रहे हैं कि हम नून लीग को ये मशवरा दे रहे हैं कि हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर बनाया जाए, जिस पे वो नहीं मान रहे, इस वजह से मामला ख़राब हो। क्या हमजा शहबाज अपोजिशन लीडर हैं पंजाब में? वज़ीर आला सर।
वज़ीर आला कौन बनाएंगे? पीपल्स पार्टी कह रही है पाँच MPA के साथ। अगर वहाँ भी वो हुकूमती बेंच से MPA पकड़ के ले आए तो फिर क्या शायद ये काम हो जाए। नहीं सर, ये जो कुछ सेनेट में हुआ, इसके बाद क्या आसिफ जरदारी साहब का और नवाज शरीफ का कोई बरह रास्त भी रब्ता हुआ है, और मरीम का और बिलावल का कोई बरह रास्त भी रब्ता है? क्योंकि माजी में वो व्हाट्सएप पे आपस में राब्ते में थे। देखिए, उनके राब्ते की ना हुआ है ना ज़रूरत है। ये PDM का मामला है, PDM का फैसला था, उसको तोड़ा गया। और ना सिर्फ तोड़ा गया बल्कि जो PDM का बुनियादी बयानिया है कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए, उसको तोड़ते हुए हुकूमती बेंचेस से लोग अपोजिशन पर बैठाए गए और लीडर्स अपोजिशन बनाया गया। तो क्या आप समझते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल गई है? अपेरेंटली तो वो PTI की गवर्नमेंट से है, तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है बीच में या खुद से पीपल्स पार्टी चली गई उधर? इसका जवाब वही दे सकते हैं। हमने तो 5 अरकान देखे हैं जो हुकूमती बेंचेस से उठकर, जिन्होंने 3 दिन पहले और 3 साल से हुकूमती बेंचेस पर बैठे थे, वो आकर आज अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं। अगर ये हकीकी अपोजिशन है तो अदम एतमाद कल ही मूव करें ताकि 57 मेंबर्स के वोट पड़े और यूसुफ गिलानी साहब वो सीट जो उनको PDM ने दी थी, जिस पर वो हमारी नज़र में कामयाब भी हुए थे, चेयरमैन सेनेट की, उस पर बैठ सके। तो सर ये PDM की जीत नहीं है कि अगर हुकूमत के लोग हुकूमत को छोड़ के तो PDM के प्लेटफॉर्म पे या अपोजिशन के साथ आके बैठ जाते हैं, तो ये तो PDM की एक किस्म की जीत हो गई। यकीनन PDM की जीत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जल्दी से अदम एतमाद करें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि PDM कितना जीती और कितना हारी है। रमजान से पहले या रमजान में सरप्राइज लास्ट मुमकिन है PDM का? और क्या ये जी, ये भी फैसला नहीं हुआ अभी, उससे पहले भी हो सकता है। अभी रमज़ान शरीफ में तकरीबन 6 दिन बाकी हैं, 5 दिन बाकी हैं, उससे पहले भी हो सकता है। ये सेनेट के सारे मामले में अंपायर आपको न्यूट्रल लगा है या अंपायर किसी खिलाड़ी का साथ दे रहा था? कौन सा एम्पायर? अंपायर एम्पायर भी बहुत से हो गए। आप जिसे अंपायर समझते हैं वो बता दें। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यहाँ पर रवायत ये थी कि अपोजिशन बेंचेस से लोगों को तोड़कर गवर्नमेंट बेंचेस पे ले जाया जाता है। आज हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका उधर से लोग यहाँ पर आए हैं, तो बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं। भाई साहब, ये पीपल्स पार्टी की सफ़ों से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि जिन लोगों ने इस्तीफ़ों को मुंसलिक किया इस लॉन्ग मार्च के साथ, वो अभी तक इस्तीफ़े नहीं दिए उन्होंने। इस पर क्या तबसरा है आपका? इस पर ये अगर PDM में बात कर लेना, ये PDM के फैसले हैं और वो फैसला इस बात पर था कि सारी PDM इत्तेहाद के साथ लॉन्ग मार्च करेगी और इस्तीफे देगी। वो ये भी कह रहे हैं कि जो एक तो आपने उनका एक मेंबर हराया और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के खिलाफ साजिश की है उन्होंने। उनको बहुत सी बातें याद आ गई हैं, जो खराबी है उसको दूर कर दे तो मामला बेहतर हो सकता है। शुक्रिया सर।